Hi everybody. Good afternoon. Yeah, hi. I see people are still joining in. So, okay, let's wait for another couple of minutes. So guys, please stay covered for another 2-3 minutes. It is 4:07, 4:08 by my clock. So we'll start at 4:10. Okay, guys, let's begin. So how did it go yesterday? We were talking some mathematics concept. I hope you liked it. Also, I left you with a small exercise about population and sample kind of thing. Just walking you through quickly. Yesterday we talked about there is something called descriptive statistics, which is all about entities which are used to describe a data. So there is something called central tendency, as simple as that, or more specifically measure of central tendency. We discussed, right? So there can be three entities which are mean, median, and mode. So for numeric data, there can be mean and median and mode. For categorical data, there is only mode possible for obvious reasons. We know that. Then we saw that, okay, central tendency does not seem enough. I need something which is called measure of, remember, I need, yes, something to measure dispersion in this data, how much this data is scattered around from the central tendency. So if I choose mean, which is by far most popular central tendency, किसी को और बाकी ज्यादा मैथ्स नहीं भी पता है तो मीन अरिथमेटिक एवरेज वो सबको पता है. In case of mean, if I consider mean as central tendency, then dispersion measure can be variance, or maybe another thing which we can use is standard deviation. However, more specifically, if there is a peculiar requirement, I'm using median as central tendency, then measure of dispersion can be IQR. कल बात किया था ये IQR क्या होता है? Percentiles, quantiles. Interquartile range, correct? When it came to mode, now in mode मैं क्या डिफरेंस देख सकता हूँ? मोड के केस में डिस्पर्शन में कैसे मेजर कर सकता हूँ? If central tendency be mode and my data is something numeric, so central tendency is 1. Now, do I consider these numeric values as such? डिस्पर्शन देखने के लिए तो हमने सोचा था ये सही तरीका नहीं है. Yes or no? Because mode is not central tendency because it is its numeric value. Numeric value तो 1 है. Mode is central tendency of its set of data because of probability distribution. किसका probability सबसे ज्यादा होता है तो probability ही तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे. I hope I'm making sense. भाई हमने इस डेटा में बोला मोड 1 है तो वो इसलिए थोड़ी बोला कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, ये कहीं बीच में आ रहा है या ये किसी परसेंटाइल पे आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट.
We chose it just because of frequency, or in other words, probability of being chosen at random. तो यहाँ से हम पहुंचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बहुत सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। सबसे सिंपल हेड टेल रोल ऑफ अ डाइस। हाँ, देयर कैन बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा इन दिस केस ये हो भी रहा है। 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है एक तरह से, 2 की उससे कम है, 3 की और भी कम है, 10 की और भी कम है। दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना इनका। Yes. ये जो डेटा मैंने लिख रखा है, ठीक है। फिर हमने देखा देयर इज समथिंग कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट इन द सेंस जो हमने बात किया था, डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज 1, then there is 2, then there is 3, very different people. डाइस रोल या तो 1 ही आएगा या 2 आएगा। देयर कैन नॉट बी 2.8, देयर कैन नॉट बी 1.5, देयर कैन नॉट बी 1.555। so very discrete people, integers basically, hardcore integers। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है, कल हमने ये भी बात किया था, कल ये भी तो बात किया था, तो उसको हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर मैं आई कैन नॉट ड्रॉ दीज बार्स लाइक दिस, so that is shown by a free flow rather than मैं ये देखने लगूं कि एग्जैक्टली एवरेज हाइट वाले लोग कितने हैं। तो एग्जैक्टली एवरेज हाइट मुझे खुद नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितनी है वो। Is it 166 centimeter, or is it 165 centimeter, or is it 165.52341 that much centimeter? I don't know. So we don't draw bars like this in these kind of things. We show it by free flow. That may be this kind of thing. Uh-oh, my bad. यहाँ तक क्लियर है जी सबको? Yes. Then there is a very special kind of distribution which comes in handy, which is the very highly significant when it comes to statistics, and it is called normal distribution. Gaussian distribution भी बोलते हैं इसे। Gaussian क्यों बोलते होंगे? It was discovered by Mr. Gauss. इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। बेल कर्व सुना है नाम? मार्केटिंग वाले हैं कोई लोग यहाँ पे? Yes, ये है। सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, है ना? जब बॉस को झाड़ लगानी होती है क्या करते हैं वो? घंटी बना देते हैं उल्टी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है चलिए देखते हैं आता कहाँ से है। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन राइट फ्रॉम द वेरी इंटरेस्टिंग बिगिनिंग। It happened, and it is usually seen in natural phenomena. Mr. Goff was, when he was studying some natural occurrences, he saw a pattern. He saw a pattern. Natural occurrences like, natural occurrences क्या क्या हो गए? Thickness of a tree, temperature in the day, rainfall in certain years. Yes, they are all natural phenomena. तो जब वो नेचुरल फिनोमेना देख रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल बात किया था, people of heights of Indian adults.
Say, just for example. So he saw that when there were some natural phenomena like heights of people, for example, मतलब वो ये example मैं ले रहा हूँ, उन्होंने नहीं लिया था. He was studying a number of things. So if I draw a graph, अगर मैं एक graph draw करने की कोशिश करूँ, so this is your y-axis, and it is representing frequency, वही जो मोड देखने के लिए हम लेते हैं, frequency, कि मेरे को कितने ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिले. और यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं? आई एम सीइंग द मेजर. एक्स एक्सिस पे is representing the measure of that phenomena. Day temperature, height of people, salary of not salary, salary is not natural, thickness of trees, rainfall. Okay, so measure of a phenomena, that is we are measuring here. तो क्या होने वाला है? Think about it. If I am talking about people's height, so what Mr. Gauss observed is, for natural phenomena like this, when I am checking the mean value, suppose this is mean height. Mean height of Indian adults lies at this point. जो भी है. अच्छा, कल मैं बात कर रहा था, गूगल किया था किसी ने? मीन हाइट आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एच बार, या मीन को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी. किसी ने देखा था कल? व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ इंडियन एडल्ट्स? Yes, it was 177 centimeter. 177. Okay, somebody is okay, somebody is enthusiastic about it. Fantastic. चलो, अच्छी बात है. तो हमने देखा द मीन हाइट इज 177 centimeter and it is a natural phenomena. So what will happen is, in such cases, it was observation of Mr. Gauss कि ऐसे phenomena में मीन पे फ्रीक्वेंसी सबसे हाई रहती है, और जैसे जैसे मैं इन एनी डायरेक्शन में बाद में चलते हैं, उन्होंने देखा ओके, इंडियन पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनकी मीन हाइट होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मिनिमम हाइट होगी. यार कोई ना कोई तो होगा इंडिया में जिसकी हम कहेंगे, अगर सबको देखने लगे तो पता चलेगा ना कि मिनिमम हाइट वाला कोई पर्सन है, दिस और दैट. लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं? इफ आई टॉक अबाउट एक्सट्रीम मिनिमा ऑफ हाइट, so this I am calling H minimum. ऐसे लोग कितने होंगे? ऐसे लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? काफी कम होगी, वेरी लेस, है ना, बहुत ही कम, रेयरली. सेम goes for if I talk about extreme maxima of this natural phenomena. What is extreme maxima of this natural phenomena? समझ रहे हो क्या बना रहा हूँ मैं? एक तरह से हिस्टोग्राम बना रहा हूँ मैं. रिमेंबर, एज का अगर मैं ब्रैकेट ले लूँ 1-1 सेंटीमीटर का, तो ऐसे ही तो बार बन रहे होंगे. I am calling it extreme maxima. So phenomena is height and this is the max value. एक्सट्रीम मिनिमा और एक्सट्रीम मैक्सिमा पे फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, मीन वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी विल बी द हाईएस्ट, एंड इफ आई मूव
फ्रॉम मिनिमा टू मैक्सिमम, मिनिमा टू मीन, ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी हर हाइट पे लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एंड इट विल बी मैक्सिमम at mean value. On the other hand, if I move any further from mean value, again it will start falling down, it will start decreasing. मैं अगर ऐसा हिस्टोग्राम बना पाऊँ तो शायद देख पा रहे होंगे ऐसा ही कुछ हो रहा है। So this is an observation which happens in almost all the natural distributions. It is very common to see. And since कल ही हमने बात किया था, this height is a continuous variable, so I cannot create like this histogram. या तो histogram बनाऊं 1-1 सेंटीमीटर के उसमें बार, but okay, हमने कहा I have a liberty, I can show it by free flow rather than bars. तो अगर free flow से मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ नहीं किया है, वही हिस्टोग्राम बनाया and I have just matched the tips by a free flow. इसको बोल रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, normal distribution of observations. And what is the observation? Observation is heights of Indian adults. ठीक है, बेल कर्व क्यों बोलते हैं? ये देखने में लग रही है उल्टी घंटी, घंटी रखी हो जाती है, नहीं उल्टी नहीं, सीधी घंटी ऐसी ही होती है। यस और नो? Yes. तो दैट इज व्हाई इसको बेल कर्व भी बोल देते हैं। This is important for us in statistics because when this is naturally distributed, when it is normally distributed, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो मिस्टर गॉस ने कुछ और भी पाया। मिस्टर गॉस ने पाया when something, any phenomena, मोस्टली उन्होंने देखा नेचुरल अकरेंसेस में, नेचुरल कुछ हो रहा हो, नेचुरल फिनोमेना में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन अननेचुरल में भी अगर देखने को मिल जाए, इफ समथिंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट कंटेन्स सर्टेन प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज, बात करते हैं। सपोज एवरेज हाइट इज दिस, तो थिंक अबाउट इट, ये लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों की हाइट है, मीन वैल्यू हमने देख ली, सेंट्रल टेंडेंसी, तो थिंक अबाउट इट, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन या कुछ वेरिएंस, कुछ तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी होगा ना इनका। भाई सही बात है कि नहीं? सर मान लेते हैं, जस्ट टू कीप इट सिंपल, जस्ट टू कीप इट सिंपल मान लेते हैं, बिकॉज वेरिएंस, सपोज वेरिएंस होता है 100 एंड वेरिएंस में हमने स्क्वायर किया था, वेरिएंस इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर। कल मैंने क्वेश्चन किया था कि जब मेरे पास वेरिएंस ऑलरेडी है तो वाई स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं हम, ये जस्ट स्क्वायर रूट ही तो होता है वेरिएंस का। पे अटेंशन टू द यूनिट। भाई ऐसे ही तो होगा। सपोज मैंने देखा है इंडिया में लोगों की हाइट्स में अगर मैं वेरिएंस चेक करने लगूं, हाउ मच फार अवे समबडी इज फ्रॉम दिस एवरेज हाइट ऑफ इंडिया, तो सपोज 100 आया वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है इसका। स्क्वायर रूट करने से क्या हो गया, आपकी सेंट्रल टेंडेंसी और आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोथ हैव सेम यूनिट।
यहाँ तक बात ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं? I will, okay, I will try to spare you from my drawing. ठीक है, वैल्यूज पे ध्यान मत देना, आई हैव जस्ट डाउनलोडेड इट क्विकली। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं? हम कहीं यहाँ पहुँच गए हैं, हम इसकी बात कर रहे थे। सो नॉट अबाउट दिस मेजर्ड वैल्यू, जो नीचे मेजर्ड वैल्यू लिखा हुआ है उसकी टेंशन नहीं लेंगे अभी, ठीक है? फिलहाल लेट्स स्टिक टू आवर प्लान। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली? मान लेते हैं हम लोगों की हाइट देख रहे थे और नेचुरली हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है। सो द मीन हाइट इज, हाँ आप लोगों ने बताया मेरे को, एंड मान के चलता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इन दिस पॉपुलेशन से 10, बोथ आर इन सेंटीमीटर्स। ऐसा ही एस्टेब्लिश किया है हमने अभी। What Mr. Gauss saw that there is a relation among these। क्या रिलेशन होता है? अगर मैं यहाँ पर सपोज दिस वाज द मीन वैल्यू इन आवर केस, हम कंसिडर क्या कर रहे हैं 177 इसको, एंड आई सी वन स्टैंडर्ड डेविएशन दिस वे एंड दैट वे। समझ रहे हो मैं किन लोगों को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ? यार ये तो हमें पता है ना कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, तो एक एक आदमी की बात नहीं करेंगे, ब्रैकेट की बात करेंगे। ब्रैकेट की बात क्या कर रहे हैं? वन स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, यानी 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये कितने लोग हो गए? किन लोगों की बात कर ली हमने? 167 से 187। ये सारे, हाँ जी, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं कि इस रेंज में कितने लोग आ जाएंगे। तो देयर वाज अ डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कितने लोग आ जाएंगे मालूम है? रेंज की बात, रेंज की बात समझ आ गई? किस रेंज की बात कर रहे हैं? यानी मीन से मीन हाइट माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये रेंज कितनी बनी? 177 माइनस 10। स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ और एंडिंग पॉइंट क्या हुआ? 177 प्लस 10। मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट इज 167 सेंटीमीटर से लेकर के 187 सेंटीमीटर तक के लोगों की मैं काउंटिंग करूं इस पॉपुलेशन, काउंटिंग नहीं मतलब प्रोपोर्शन देखूं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, so they will be 67% of the total population। 67 है 65 है, कोई बता सकता है कितना है ये? एग्जैक्ट 68 है शायद। हाँ जी, किसी को है मालूम एग्जैक्टली? अरे गूगल ही कर डालो जल्दी से। 68 है शायद से, या 68.2 समथिंग लाइक दैट।
68%. 68 now. Yes, sir. Okay, so that amounts to, गलत लिख लिया फिर मैंने, ठीक कर देते हैं. Such people will be specifically 68.2% of the people will lie in this bracket. कौन सा ब्रैकेट था ये? फर्स्ट ब्रैकेट. मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमारे केस में हो गया 177 माइनस 10, दैट इज 167 से लेकर के मीन माइनस नहीं प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन. हमारे केस में हो गया 177 प्लस 10, दैट अमाउंट्स टू 187. So in this bracket, guys, my drawing is already pathetic. Please don't contribute. ठीक है. विपिन, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 तो मैंने एज्यूम किया है जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो, मेरे को काम क्या करना है, मीन से माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से ऐड करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन और इस ब्रैकेट में देख लूंगा. तो इन दिस रेंज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? मीन इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. नाउ आई कैन नॉट ड्रॉ म्यू द ग्रीक लेटर, यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यू. Yes. ऐसा तो कुछ करके लगता है वो यू की तरह. हाँ, 348156, प्लीज करेक्ट योर नेम. यू आर आस्किंग हाउ 68% केम. वो बताता हूँ बाद में, पहले नाम ठीक कर लो अपना. अरे नाम ठीक कर लो, कोई गवर्नेंस से आएगा डिसमिस कर देगा यार आपको, फिर परेशान होते हैं आप लोग. तो ओके, तो दिस वाज अबाउट. अब अगर मैं देख रहा हूँ मीन से प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, देन देयर इज अनदर रूल. आई एम इरेजिंग द ड्राइंग. अगर मैं अभी सिमिलरली अब मैं देखने लगूं, इफ आई चेक मीन, अब मैं चेक करूं प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी क्या कहते हैं, मीन हमारा क्या था 177 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना भी है, एंड 177 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना भी था. हाँ जी, कितना कितना हो गया ये? वन 177 एंड माइनस ट्वाइस ऑफ 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था ना, तो 157 सेंटीमीटर्स, एंड दिस हैपेंस टू बी 197 सेंटीमीटर्स. तो हमें क्या बोला जा रहा है, इस रेंज में अगर देखूं तो कितने ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे. मिस्टर कॉस ने देखा, अगर मैं इस रेंज के लोगों को देखूं तो 95% ऑफ पॉपुलेशन विल लाई इन दिस ब्रैकेट. 99% ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन नहीं कहते, ऑब्जर्वेशन कह देते हैं. 99
95% ऑब्जर्वेशंस विल बी लाइंग इन दिस ब्रैकेट। अगर दोबारा मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो कैसे देख रहे थे अभी? दिस वाज मीन एंड दिस वाज से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, तो यहाँ तक कितने लोग आए थे अभी अभी जो देख रहे थे? 68%। 68% लोग इस ब्रैकेट में थे। अब मैं कह रहा हूँ और थोड़ा सा दूर चलते हैं। कितना दूर चलते हैं? कुछ और ले लेता हूँ। अब कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ दिस, यानी किस ब्रैकेट की बात हो रही है? ट्वाइस ऑफ दिस, यहाँ तक और इतना ही और, यानी यहाँ से ले लो लोगों को, दूसरी तरफ यहाँ तक और इतना ही और, यानी यहाँ तक के लोग। तो कहते हैं कि इस रेंज में कितने लोग आ जाएंगे? 95% ऑफ पॉपुलेशन विल लाई इन दिस ब्रैकेट। मेरे ख्याल से हमने ठीक ही लिया है एग्जाम्पल, अगर आप देखो तो शायद आ भी जाएंगे। अरे इंडिया के लोगों की हाइट कैसी होती है? आई थिंक ये ठीक ही लिख लिया है हमने। 157 से 197 तक के लोग अगर देख लूँ सेंटीमीटर्स में, तो शायद 95% पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। नहीं? एवरीबडी ओके? किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी तक इसमें? दीज आर प्रॉपर्टीज। किसी का क्वेश्चन आया था कि 68% कहाँ से आया? सो दिस वॉज अगेन एंड अगेन ऑब्जर्वेशंस आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, बार बार ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं। तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये किसी उससे निकाला गया था, बाद में मतलब एस्टेब्लिश हो गया था कैलकुलस के थ्रू। कैलकुलस में मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों को लेकर के। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सुन रखे हैं कुछ लोगों ने? सर इट वाज इज फिक्स। हाँ जी, सर ये आपने सर फिक्स कर रखा है कि 68% और 95%। हाँ, it was observations by multiple observations on several tests. It was established कि इतना हो जाता है. So this is a kind of fundamental. ओके सर। प्रूफ करने के तरीके हैं, लेकिन प्रूफ बाद में हुआ था, पहली बात। दूसरे उसके लिए मेरे को इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इट इज़ ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग, अपनी ही तकलीफ बढ़ा लेंगे आप लोग। अभी बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने हाँ जी टप्पा करा है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सुना है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ, अरे कुछ ने तो सुना है, कुछ ने सुना भी नहीं होगा, ऐसे भी तो होंगे। तो हाँ, इनका ताप बहुत तेज है, तो दूर रहो थोड़ा सा। फिलहाल सिंपल रखते हैं, अभी सिंपल रखते हैं, अपने मतलब की चीज अभी फिलहाल, फॉर नाउ, फॉर योर सेक, फॉर माई सेक, अभी मान लो कि हाँ हमें इतना पता है कि 68% होता है इस ब्रैकेट में, 95% होता है इस ब्रैकेट में, एंड बी विद दिस। आया कहाँ से उसकी चिंता नहीं करते। नाउ विल यू बी एबल टू डू इट योरसेल्फ? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कोई और कलर चेंज करते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू तो ये पहले ही है, क्या करूँ, कौन सा लूँ? ओके, लेट्स क्रिएट एमार्टिकस कलर्स। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, हमने क्या देखा? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हमने देखा 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम मीन। अब मैं कह रहा हूँ इफ आई गो टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम मीन, यानी 3 टाइम्स, मीन से माइनस कर लो 3 टाइम्स और मीन से प्लस कर लो 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन को इस वाले ब्रैकेट में। जरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे क्या क्या आ गई, किस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं? मीन 177, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, तो किस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम? 147 हम्म, मीन प्लस एंड माइनस 3 times standard deviation, so this becomes minus 3 times of 10.
that becomes 147, सही बात है, and mean plus 3 times of standard deviation, that becomes, अच्छा 200 क्रॉस हो गया, ओके 207 सेंटीमीटर्स। तो इस ब्रैकेट की बात करने लगे, और इस ब्रैकेट में गॉस कहते हैं अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे देखूं मीन वैल्यू से, तो हमें कितने, तो इट इज 99 पॉइंट समथिंग, देख लेना, 99% is something which is interesting, 99% 0.7, okay, wow, 99.7% of observations will lie in this bracket. ठीक है जी, so this is about normal distribution. तो when normal distribution होता है तो उसकी कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड इट कम्स इन हैंडिंग, अभी जब आप देखेंगे ये आपके काम आएगा, मॉडल टेस्टिंग में काम आएगा, ये आपके काम आता है सिग्निफिकेंस टेस्ट में, ये आपके काम आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, सो प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश्ड। इन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा देता हूँ, हमने जो कुछ भी बात की है वो ये देख के समझ आ जाना चाहिए। खैर, हमने ये बात की अभी तक, इस ब्रैकेट में कितने परसेंट ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। On x-axis it is showing density, probability density basically, and on y-axis actually density is, on x-axis it is showing how many number of deviations it is away from mean value। मीन कहाँ लाई कर रहा है, 0 पे, मीन इज हियर। तो इससे कितने कितने स्टैंडर्ड डेविएशन इधर हम गए, -1 +1 68, -2 +2 तो 95, एंड -3 +3 99.7। इससे आगे भी जा सकता है, -4 +4 करके देख सकते हो, बट ओके ठीक है, अभी वहाँ नहीं जा रहे इतने बारीक में। कुछ और चीज़ें जो इंटरेस्टिंगली विच आर बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, थिंक अबाउट इट। ये सब होने की वजह से, somebody's mic is on, please switch off mic if you are not talking। Thanks। The thing is,
कुछ चीजें विजुअल टेस्ट अगर करें, इट इज सिमेट्रिकल अक्रॉस मीन। यस और नो? Yes. दीज आर सम की प्रॉपर्टीज। कुछ कैलकुलेशन वाली जो है वो करके देख ली, कुछ की प्रॉपर्टीज और बता दे रहा हूँ। सो मीन इट इज सिमेट्रिकल अक्रॉस मीन वैल्यू। मतलब क्या हुआ इस बात का? इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह रहा हूँ, यस और नो? यार अगर सिमेट्रिकल है मीन के अक्रॉस, तो मीन ही मीडियन भी हुआ ना। इतनी वैल्यू इधर है, इतनी वैल्यू आगे है, और वही तो मीडियन होता है। ठीक बात? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडियन इज ओनली इन केस ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यू। मीडियन इट इज और ओनली फॉर ऑर्डर्ड वैल्यू। हाँ, तो ऑर्डर में तो चल रहे हैं पंकज। वी स्टार्टेड ऑफ विद एक्सट्रीम मिनिमा, यही तो बात कर रहे थे अभी। कंफ्यूजन हो गया क्या? बीटेक करो, एमटेक मत करो। ऐसा होना चाहिए। हाँ, सही है। ठीक है। एक्सट्रीम मिनिमा से मीन की तरफ चले तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ती बढ़ती गई। जब मीन पे पहुंच गए, इसके बाद फ्रीक्वेंसी गिरती गिरती चली गई, और ये उसी रेशो में इंक्रीज हुई है और उसी रेशो में डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से दोनों तरफ सिमेट्री आई है। तो ऑर्डर तो है ना? यस। ठीक है, चलो। ओके। दूसरा दूसरा तो खैर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मीन जहां पर होगा, मीन पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। मीन पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। इन अदर वर्ड्स मालूम है क्या कह रहा हूं? मोड भी वही होगा, यस और नो? यही तो बात हो गई। Yes. तो इफ देयर इज परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन मीडियन मोड एक ही होंगे। इफ नॉट परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी होगा, तो भी आसपास जरूर होंगे। क्लोज इनफ। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात हुई तो इनफ अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन में यही जानकारी वाली चीज़ थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज इसके पता होने चाहिए। ये काम कैसे आएंगे ये अभी आगे देख लेंगे। कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था डिस्क्रिप्टिव के बाद इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। वो क्या होता है? ये वही होता है जो इसका नाम है। Inferential statistics, when we are trying to infer something, infer something क्या होता है? What is inferring? Inferring का लिटरली मीनिंग मालूम है किसी को? टू प्रेडिक्ट समथिंग। हाँ, काइंड ऑफ एक तरह से प्रिडिक्शन भी कह सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्शन, बट ओके चलो बताते हैं। सी, देयर इज एंटायर पॉपुलेशन and I cannot observe entire population. अभी अभी तो करके देखा है। इंडिया के पॉपुलेशन की हाइट के बारे में बात कर रहे थे हम। हमें क्या पता? आई कैन नॉट गो टू एंटायर पॉपुलेशन, नो।
Suppose I want to do a test and convince myself for something, but I cannot go to entire population for very obvious reasons. It is not cost effective, it is not time effective, it is not practical. Yes or no? Yes. पूरी Yes. पॉपुलेशन पे मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। और इन अ वे आप सोच के देखिए, जो भी आप प्रिडिक्शन या जो भी आप टेस्टिंग जो भी आप कर रहे हो, आप सपोज चाहे कोई भी डेटा क्यों ना ले लें, एक बैंक आपको डेटा देता है 40,000 कस्टमर का, जो मैंने दिया था स्टार्टिंग में। Being in data analytics, you will always be dealing on a sample, no? माना आपको 40,000 लोगों का डेटा दिया है, that is a massive data, but it is sample, no? It is not population. समझ आ रही है बात? ये उस बैंक का डेटा है जिसने दिया है, बाकी बैंकों का क्या? ये सारी दुनिया का डेटा नहीं हुआ ना? So we will always be dealing with samples. Population पे मेरा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हो सकता। So what I am doing, I am taking a small sample from this population. I will conduct my experiment, whatever it is, on this population, on this sample. So this is population, which is massive. I cannot go to each and everybody. So I take a small sample, I conduct my experiment or survey or my calculation, my statistics on this sample, and then I declare that this seems to be true about this population too. That is inference. I am making a decision about entire population without experimenting with entire population, without testing with entire population. I am testing just with a sample, and with that sample, इस sample की observations को देख करके I am declaring that this seems to be true about other population too. एग्जिट पोल कैसे होते होंगे? एग्जिट पोल जिनके बारे में हमने सुन रखा है, न्यूज़ चैनल कैसे बताना शुरू कर देते हैं कि इस स्टेट में ये पार्टी, क्या वो स्टेट में सब लोगों से बात कर लेते हैं कि किसको वोट डाल के आए हो? व्हाट डू यू थिंक? Remember the latest Delhi election? Most of exit polls predicted, their exit poll was saying that Aam Aadmi Party is coming back with massive majority. हाँ, फिगर में डिफरेंस था, थोड़ा बहुत था। कुछ कह रहे थे इतनी नहीं, इतनी सीट, कोई कह रहे थे इतने वोट नहीं, उतने वोट, किसी का परसेंटेज दिस मच, किसी का दैट मच, वो हुआ। बट मोर और लेस डिसीजन सही था उनका, इन्फ्रेंस सही था। कैसे किया होगा उन्होंने? क्या उन्होंने सब लोगों से बात कर ली थी दिल्ली में? Opinion with the available information. हाँ, कुछ लोगों के ओपिनियंस उन्होंने जाने, मे बी बीइंग ऑन द ग्राउंड और मे बी बाय ऑनलाइन सोर्सेज. So what they did exactly was they took their test to sample. एक सैंपल सेलेक्ट किया, रैंडमली चोजन सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनसे बात की, एंड बाय देयर रेस्पॉन्स they inferred that okay, this seems to be the true about entire population. शायद across Delhi शायद कुछ ऐसा होने वाला है। क्या ये साइंटिफिक लगता है आपको? ये काम कैसे कर जाता होगा? सैंपल तो बहुत छोटा हुआ यार। अगर मैं दिल्ली में 100 लोगों से बात कर लूँ, दिल्ली पॉपुलेशन इज क्रॉसिंग क्रोर्स, गलती नहीं हो सकती इसमें? कैन आई लीव दिस मच टू चांस? So that is inferential statistics all about. नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी अंधेरे में तीर नहीं मार से। There is maths, there is very intelligent maths behind it. तो पहले आपको समझना होगा
पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। कल जो मैंने लिंक भेजा था करके देख लिया आपने कुछ उसमें? रन किया था? अरे किया था, देख लिया था। अरे नहीं किया था तो वो बता दो, नहीं किया था कोई बात नहीं। हाँ छोटा सा टेस्ट था उसमें और कुछ नहीं। दैट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके करके देखें जरा 2 मिनट अभी। लिंक है वो आप लोगों के पास? जस्ट आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। अभी दे दूं लिंक? दे दूं अभी? करके देखेंगे 2 मिनट? अगर लिंक नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट यू नो आप समझ जाएं इसको, जस्ट while playing and you will understand what are key things here. Okay, okay, nice. जिनके पास लिंक नहीं है, here in the chat box. Okay, many people say they are done with this. Okay, ठीक है, अच्छा है ना, छोटा छोटा सिंपल सिंपल सी बातें इजीली समझ में आ रही होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी जैसा ऐसा तो नहीं अभी तक जो बात की है?
ओके ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं। Showing you something. This is something. अभी तक आपको पता ही है कि अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो मीन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्रीक लेटर म्यू और कैलकुलेट करते हैं ऐसा, sum of all the values divided by number of values. Since it is population, so we are calling it capital N. अगर सैंपल के लिए हम मीन कलेक्ट कर रहे हैं, if we are computing mean of a sample, for sample mean is represented by x bar, since we are representing values by x1 x2 x3, x bar. Computation again simple, sum of all the values divided by number of values. Since it is sample, it is a small sample of random observations, small n. Something goes with the standard deviation, and do you notice something? They are giving two forms, equivalent form करके. Let's stick to the upper form for now. जो आपने सीख रखा है वहीं पे रहते हैं. But do you notice something? Sir, why this n minus 1? Oh, I guess ये formulate से करके ना. Formulate से करके. As in if we separate, x minus a, तो उसको ऊपर नीचे multiply करेंगे तो वो हो जाता है. अच्छा, नहीं, actually not that. अब पहले तो ये बताइए, देख लिया है सब लोगों ने? ये क्वेश्चन समझ आया जो पूछा है? डिफरेंस इन फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा है यहाँ पर, x माइनस मीन उसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि साइन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, डिवाइडेड बाय n, वो तो वेरिएंस होता है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, विच विल हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ योर सेंट्रल टेंडेंसी. ये बात तो करके चुके. अब हम बात कर रहे थे कि सैंपल में जब ये कैलकुलेशन करेंगे, सैंपल में कुछ तो डिफरेंस हो रहा है. कितने लोगों को तो यही नहीं पता था कि ये भी कुछ होता है, और क्यों होता है वो तो बात करूंगा आगे. कितने लोगों को ये मालूम था कि ऐसा कुछ होता है? किसी को मालूम था? चाहिए ना पता हो क्यों था, लेकिन ये मालूम था कि ऐसा होता है. एनीबॉडी वन सच? कोई तो हो, कोई तो होना चाहिए.
ओके, नोबडी थिंक अबाउट इट। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क क्या पड़ेगा? ये n माइनस करने वाले ने जो मिस्टेक की है, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ा है? मान लेते हैं फिलहाल ये मिस्टेक है, क्या फर्क पड़ा होगा? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा दिखेगी, कम दिखेगी, क्या होगा? होगा क्या? एक फॉर्मूला वो तो हमें पता ही है, सीधा सरल। इतनी वैल्यूज ने डिवाइड बाय n करो ना सीधे, n माइनस 1 का क्या मतलब? एनीबॉडी बता सकते हो? अगर डिवाइड बाय n किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसी आई होगी? डिवाइड बाय n माइनस 2 किया, n माइनस 1 का रखा है जो यहाँ पर किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? सो इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी एलिवेटेड दिखेगी, है ना? होता क्या है करेक्ट इसमें समझने के लिए, आप अगर मैं ग्राफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। इज इट विजिबल द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे पहले देखा था? सपोज ये ऐसा था, देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है। अभी मेरे को इसमें से सैंपल लेना है। सपोज मेरी पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। अब इसमें ये तो हम देख चुके हैं ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है सेलेक्ट हो जाने की जब मैं रैंडमली सैंपल करूंगा? ऑब्वियसली मीन, या इसके आसपास वाला कोई। यस और नो? यस। ये जो मीन वैल्यू है या इसके आसपास वाले जो लोग हैं, इनके सेलेक्ट होने का चांस सबसे ज़्यादा है। और मैं ले रहा हूँ छोटा सा सैंपल, तो उस सैंपल में ऑब्जर्वेशन में ये रैंडमली सेलेक्ट करने से बायस आ जाता है। ये रैंडम सिलेक्शन जब मैं कर रहा हूँ, देयर विल बी बायस टुवर्ड्स दीज वैल्यूज हु आर वेरी नियर टू मीन। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, लेट्स नॉट डिवाइड बाय n, लेट्स डिवाइड बाय n माइनस 1। मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेरा जो सैंपल था, जो सैंपल हमने बनाया था, सपोज यहाँ पर दिस इज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में तो n इज वेरी वेरी लार्ज समथिंग। सैंपल से मैंने लिया 50 लोगों का सैंपल, तो आई एम डिवाइडिंग बाय 49, जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगेगा। और उससे क्या होगा? उससे कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं डिवाइड बाय n करता तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। शायद कुछ ऐसा बन रहा होता अगर डिवाइड बाय n करता। अब बिकॉज डिवाइड बाय n माइनस 1 किया है, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, और वो थोड़ा सा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि फैल जाएगा ना थोड़ा सा। यस और नो? अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी? कम थी, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और आगे खत्म ही हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो गई तो दिस हैज अ लिटिल बिट इंक्रीज, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा, पीक थोड़ी सी नीचे आ गई है और टेल्स थोड़ी सी फैल गई हैं। तो दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस द बायस टुवर्ड्स मीन वैल्यू। पॉपुलेशन में तो जैसा है सो है, लेकिन पॉपुलेशन में सेलेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है इन लोगों का, तो क्योंकि मैं बहुत छोटा सा सैंपल ले रहा हूँ, हो सकता है आई मे सेलेक्ट मल्टीपल टाइम्स द मीन पीपल। तो उसी बायस को कॉम्पनसेट करने के लिए हम डिवाइड बाय n माइनस 1 करते हैं। मतलब इतनी आसानी से समझा नहीं पाऊंगा मैं, और ठीक है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लेना, नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है, तो हाँ पैसे लगने चाहिए इस बात को समझने के। ठीक है ठीक है। ओके, अदर देन दैट ठीक है ये। नेक्स्ट बात करें, ये इन्फ्लुएंस होगा कैसे। यूज इन ग्राफ्स, नहीं नहीं विपिन ग्राफ्स की उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आ जाएगा, चलो अभी क्लियर होगा। मैं बताता हूँ, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करता हूँ अभी सेकंड हाफ में, तो क्लियर आ जाएगा, समझ आ जाएगा किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड इसमें हम पॉपुलेशन सैंपल का कॉन्सेप्ट आया, सो दैट वी कैन infer something about entire population by just experimenting on a small sample. A popular example, exit poll. Another aspect of this inference is आई होप ज़्यादा बोर नहीं हो रहे हो, थोड़ा थ्योरी चल रहा है ज़्यादा, कोडिंग भी नहीं हुई इस बार तो, और मैथमेटिक्स भी ऐसा हैंड्स ऑन जैसा कुछ नहीं करा रहा हूँ, बट आई होप थ्योरी जितना करा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। कोडिंग में क्या क्या करेंगे वो हो जाएगा, समझ जाएंगे, एंड आई होप इट इज़ इंफॉर्मेशन जो भी बात हो रही है। चलिए ठीक है। Then there is something hypothesis testing. Alright, testing, hypothesis testing. So this is again a jargon word. You will hear it every now and then. हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे केसेस में होती है, वहां पर हमें इन्फ्रेंस की जरूरत कैसे पड़ती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अबाउट व्हेन देयर इज अ क्लेम। क्लेम कैसा, फॉर एग्जांपल माय स्टेटमेंट इज, आई स्टेट दिस इज माय स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभिनव का भी कहना है सही कह रहे हो सर, मनप्रीत भी कह रही है ठीक कहते हो सर, पंकज भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हो सर, रमन भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हो सर, एंड एवरीबडी इज एग्रीइंग टू मी। जब सब एग्री ही कर रहे हैं तो ये बन गया यूनिवर्सल फैक्ट या डी फैक्टो, या जिसको बोलते हैं स्टेटस को। युगों युगों से यही था और युगों युगों तक यही रहेगा, क्योंकि कोई मना ही नहीं कर रहा ना इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ सब एग्री कर रहे हैं, तो देन इट इज यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, से फॉर सम रीजन
Now this was my statement. Say one of you, say Shama says, Shama has another opinion. And what is her opinion? शमा का कहना है ऐसा नहीं है, आप जैसा कह रहे हो सर. Sun revolves around the earth. What has happened is now there is a claim. Now there is a counter theory which does not agree with me. So in that case, now it cannot be called universal fact because there is a challenge. झगड़ा हो गया ना, अब तो एक ही बात सच हो सकती है. झगड़ा है, उसके लिए टेस्ट करेंगे. So now we are saying there is no fact, neither this nor that. Now both are hypotheses and we will test which one seems to be true. So this is called null hypothesis. In such cases, it is denoted by H naught. कैसे बनाऊं नॉट, कोशिश करते हैं. H naught से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. H0, H naught, null hypothesis. And the challenging theory becomes, उसको क्या बोलते हैं? Alternate hypothesis. That becomes alternate hypothesis. And it is represented by H1 से भी करते हैं, HA भी कह देते हैं. समटाइम्स मैं जैसे नोट करता हूँ तो मेरे उसमें HA ज़्यादा देखोगे आप लोग. इधर H1, बहुत सारे लोगों के उसमें H1 भी देखोगे. कुछ लोग HA बोलेंगे मेरे जैसे. दोनों ठीक है. अरे भगवान कसम से ये डिजिटल पेन ने जान ले रखी है. यहाँ तक ठीक है. नल हाइपोथेसिस किसको बोल रहे हैं? जो पहले विच वॉज स्टेटस को, विच वॉज द प्रिवेलिंग थ्योरी. पहले सब एग्री कर रहे थे लेकिन अभी चैलेंज आ गया है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन है? द क्लेम, द चैलेंजर, उसको हम कह रहे हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो ये जस्ट समझाने के लिए, इट इज नॉट दैट सिंपल. अभी तो थोड़ा सा और आगे जाएगा, बट ये क्लियर हुआ टर्मिनोलॉजी. नल हाइपोथेसिस कौन बना, अल्टरनेट कौन बना. यस. अभी आते हैं, नाउ हमें करनी है क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग. क्या ये ट्रू है या ये ट्रू है. लेकिन उसके लिए पहले इनमें कुछ कंडीशंस हैं. देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस मेट टू डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. That your hypotheses, this null and alternate hypotheses, they should be mutually exclusive. What does it mean? Mutually exclusive का मतलब क्या हुआ, पढ़ा है किसी ने ये मैथ्स में? Mutually exclusive events. नो. Mutually exclusive का मतलब हुआ that there cannot be a common ground.
in both the statements there cannot be any common ground, there cannot be any data point, there cannot be any time instance, there cannot be any day कि जब ये दोनों कहीं ट्रू हो रहे हो फॉर सम रीजन, ऐसा नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ये होगा या वही होगा। ठीक है, so that is mutually exclusive. Then there is something called, at the same time these both hypotheses should be collectively exhaustive. इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? वही जो डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे थे, अगर मैं ये इवेंट भी देख लूं और वो इवेंट भी देख लूं, तो अब इन दोनों में जो पॉसिबिलिटीज कवर हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है, मैं कह रहा हूँ उसने ये बोला कि ये पॉसिबिलिटी है, दूसरे ने बोला ये पॉसिबिलिटी है, अब कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नथिंग कैन बी आउट ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने लिख रखा है, मेरा स्टेटमेंट था अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, शमा's स्टेटमेंट इज द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? और कुछ पॉसिबल है भी? यस, जैसे दोनों से कोई भी एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाता। अच्छा, फैंटास्टिक, बिल्कुल सही बात। देखो, सही बात है, सही बात है। अभी ट्रू फॉल्स तो पता ही नहीं ना, तो पंकज का स्टेटमेंट आ गया, पंकज कह रहे हैं कोई किसी का चक्कर नहीं लगा रहा, बोथ आर स्टेशनरी। पॉसिबिलिटी तो है ये भी। ओके, मे बी अजय का स्टेटमेंट आ गया, अभी कोई और कुछ कहने लगा, दैट ओके ठीक है, बोथ आर रिवॉल्विंग, बोथ आर रिवॉल्विंग इंडिपेंडेंटली, कोई किसी के एक तरफ चक्कर नहीं लगा, दोनों अपने अपने कहीं ऑर्बिट कर रहे हैं। मे बी और भी कुछ, यस और नो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स पॉसिबल। अभी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता that there is one null hypothesis and one alternate hypothesis and then there are some other hypotheses. It cannot be that way. There have to be only two hypotheses. Then I will consider testing them. I hope ये समझ आया बात आपको। So think about it. Alternate hypothesis कब कहूँगा इसको? जब मेरा स्टेटमेंट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड थिंक अबाउट इट, जरा सोच के देखना। अब की बार शमान ने कहा आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है, और चाहे कुछ भी हो। समझ आती है बात? थिंक अबाउट इट। अब शमा के स्टेटमेंट में ये कंडीशन इन्वॉल्व है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं होने देगी। गेटिंग इट एवरीबॉडी? यस, तो अब जब मेरा स्टेटमेंट था दैट दिस हैपेंस, शी सेज दिस हैपेंस एंड इट इंक्लूड्स, दीज टू स्टेटमेंट्स इंक्लूड एवरीथिंग व्हाटएवर इज पॉसिबल। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो अब ना ये इसके बाहर है, ना ये इसके बाहर है, ना और कुछ इसके बाहर है। नाउ एवरीथिंग इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों बातों में से ऐसा कोई दिन नहीं जब दोनों बातें हो रही हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं जब दोनों बातें हो रही हैं, एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। देयर इज नो एनी सच पॉसिबिलिटी जो इन दोनों से बाहर हो। नाउ दे आर null hypothesis and alternate hypothesis, and now I can talk about testing them.
ओके जी, so far so good. Do you need a break? एक बार ब्रेक कर लें थोड़ा सा, या चल रहे हो? अरे ओवरफ्लो तो नहीं हो गया? होना तो नहीं चाहिए वैसे but anyway, I'll need to ask. Anything you need like that to the वैसे तो ग्राफ तो मैंने गूगल वगैरह से ही निकाले थे अभी, वो तो जल्दी से मिल जाएंगे आप लोगों को भी, अगर कुछ ग्राफिक वगैरह जो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा दिखाया था आप लोगों को। चलिए ठीक है, so okay, let's do one thing. Let me clean up the drawing for fun. Okay, let's break here for a while. And we will take an example of hypothesis testing, not like this one. अभी तो आप लोग ये सोच रहे होगे, अच्छा ये आया किसके दिमाग में, मेरा स्टेटमेंट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हु विल काउंटर दैट? Shama, do you want to counter it? Anybody else? Anybody else wants to counter it? क्या बोलोगे? अच्छा, yes, Shama, wow. You seem to be. Have you joined that group, Flat Earthers? Actually the case, नहीं अब लोगों को बता देता हूँ। संगमित्रा, have you heard of that flat? There is a group, Flat Earthers or Flat Earthers or whatever they call themselves. There is a cult. You know, they still believe that Earth is flat. And you know, it really, I mean, it really takes guts, yaar. Everybody is calling you fool and idiot and stupid, and they are rubbing your rubbing all the kinds of proofs and things and sciences in your face, and still they are you know, hanging with their belief. So what a strong belief they must be having. तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई काउंटर नहीं कर सकता. You know, there was a theory a few hundred years ago that sun revolves around the earth, and that used to be the universal fact. One day one fine man challenged that, and today we know another kind of universal fact. Maybe someday somebody will challenge my status, my statement also. So as long as data science goes, there is no universal fact. चलिए ठीक है. Okay, so let's do it there. It is almost 5:35, 5:36 by my clock. So let's take a break of some 15 minutes. That will suffice, I believe. So maybe we resume at say 5:55, but just please be back in time, and we will discuss hypothesis testing with help of an example. You don't need to leave the meeting, okay? Just stay signed in. Okay, so see you there.